So now in this class we are going to start a new chapter which is atoms. We have to study only 2 or 3 concepts in this chapter because the majority of the part we will be covering in chemistry only. Okay? So this chapter starts with the nucleum, with the models of the atoms that were given to explain the structure of the atom. The first comes J.J. Thomson model. It is also called as plum pudding model या watermelon model. उन्होंने उसमें बोला था कि all the electrons are embedded in the sea of positive charges. So if you consider atom as a watermelon, then the seeds of the watermelon can be considered as the electrons, like they are embedded in the same way the electrons in the atoms are embedded in the atom. Okay? And there is a sea of positive charges. But he could not explain the stability of the atom, and he could also not explain the reasons for alpha scattering particle का जो experiment किया था रदरफोर्ड ने, he could also not explain that, so the model failed. और फिर उसके बाद आया हमारे सिलेबस में जहाँ से भी स्टार्ट करना है, which is Rutherford's, or let me mention it as Geiger and Marsden experiment. So actually जो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ये 1906 में पहले रदरफोर्ड कर चुके थे, बट फिर उन्होंने अपने 2 एसोसिएट्स ग्राइगर और मार्स्टन, ये उनके 2 एसोसिएट्स थे, उन्होंने 1911 में अपने इन लोगों से कहा कि आप एक बार एक्सपेरिमेंट को फिर से कंडक्ट करो और देखते हैं जो रिजल्ट्स उन्होंने ऑब्टेन किए थे वही रिजल्ट्स इन लोगों को भी मिलते हैं या नहीं, बिकॉज ही वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट हिज रिजल्ट्स. So the experiment was already conducted by Rutherford in 1906, and then in 1911 he asked his 2 associates Geiger and Marsden to repeat the experiment and observe the results. So सबसे पहले हम इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. So now I am going to draw the experimental arrangement. What was the experimental setup? We are going to see that. किसी को पता है कि कैसे क्या हुआ था? पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. कोई एक जना पढ़ा होगा, बताओ, ऐसे मुझे समझ नहीं आता. कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? ओके चलो आई एक्सप्लेन, फिर उसके बाद बता दूंगा. ठीक है, उसके बाद बता दो तब भी मेरे लिए एक्स्ट्रा. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में सबसे पहले क्या होता है, वी टेक one radioactive source of alpha particle. ये कोई radioactive source है, like it can be bismuth या uranium या polonium, जो भी है, it is a source of some alpha particle and it will emit out alpha particles. ठीक है, अब ये जो source of alpha particles है, it emits alpha particles in all the directions. ठीक है, so अब क्या होता है, इसीलिए this source of this radioactive source of alpha particle is enclosed in a thick lead block. So इस तरीके का एक lead block होता है जिसके अंदर it is enclosed. This is a thick lead block inside which the radioactive source of alpha particle is enclosed. Fine. So lead block क्यों लिया? Because it has very high density and the alpha particles cannot penetrate through it. Because अब यहाँ से alpha particles हर डायरेक्शन में निकलेंगे, बट हमें हर डायरेक्शन में ही चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, इसलिए हमने एक lead block लिया है. अब जो alpha particles निकलेंगे वो यहीं से निकल पाएंगे, एंड बाकी जो alpha particles निकलेंगे हर डायरेक्शन में, the lead block will absorb it. ठीक है, समझ गए? So this is lead block. And this is इसको थोड़ा सही से चलो दोबारा से This is radioactive source of alpha particle. This is thick lead block.
ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है, अब जो ये नैरो ओपनिंग है यहां से हमारे अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। नाउ दिस अल्फा पार्टिकल्स आर कॉलिमेटेड इनटू अ थिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। सो कॉलिमेटेड का मतलब क्या होता है कि ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं इन्हें एक बीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि अब जो ये अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे कॉलिमेट के बाद ये निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये कॉलीमेटर होता है एंड दिस इज अगेन मेड ऑफ लेड। ठीक है, सो दिस इज कॉलीमेटर, इसको बोला जाता है। ठीक है, सो अब यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकले, कॉलीमेटर ने कॉलीमेट किया और इसके बाद जो हमें मिलता है दैट इज बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, नाउ दिस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज मेड टू स्ट्राइक ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। यहां पे थिन गोल्ड फॉइल ली जाती है, ठीक है, एंड नाउ these alpha particles are made to strike the thin gold foil. So इस गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक करने के बाद जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाते हैं और यहाँ पे एक रोटेटेबल डिटेक्टर होता है इस तरीके से। ठीक है, और इस पे एक अच्छा, सबसे पहले तो गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल ऑफ ऑल नोन मेटल्स। पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, एंड डक्टिलिटी वायर्स, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। तो जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा मेलिएबल है और रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्हें एक ऐसा मेटल चाहिए था जिसको वो बहुत ही ज्यादा थिन फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। मतलब इतना थिन कि ये जो फॉइल है इसमें खाली एक सिंगल लेयर ऑफ एटम्स है, मतलब एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर ना हो एटम्स की, अदरवाइज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हो रहे थे वो अफेक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे खाली एक लेयर है एटम्स की, इतनी थिन है ये गोल्ड फॉइल, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को यहाँ पे चुना। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक रोटेटेबल डिटेक्टर होता है। ठीक है, इस पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है। अब ये इस पे जो कोटिंग करी है ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्यों करी है? क्योंकि जो जिंक सल्फाइड होता है इट इज अ सिंटिलेटिंग कंपाउंड। मतलब ये जो जिंक सल्फाइड की स्ट्रीम है, जब अल्फा पार्टिकल्स आपके इस पे स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो कुछ टाइम के लिए रहता है एंड फिर वो गायब हो जाता है। सो अब जब यहाँ पे स्पार्क आता है तो हमें पता लग जाता है कि अल्फा पार्टिकल ने कहाँ पे स्ट्राइक किया। तो इसीलिए यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्ट्रीम ली है और यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लिया होता है इस तरीके से। ये माइक्रोस्कोप हो गया आपका। ठीक है, और फिर माइक्रोस्कोप से जहां पे भी स्पार्क आया होता है इस माइक्रोस्कोप से उसे देखा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका माइक्रोस्कोप। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है पूरा। ठीक है, ये एक सोर्स हो गया जहां से अल्फा पार्टिकल्स हमारे निकलेंगे, रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इट इज एनक्लोज्ड इन अ लेड ब्लॉक। व्हाई? बिकॉज़ जो लेड है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एंड द अल्फा पार्टिकल्स कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू इट। सबसे पहली बात। ठीक है, तो फिर यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकले, यहां से भी थोड़ी बहुत डायरेक्शन से निकलेंगे, तो यहां से उन्हें कॉलिमेट किया जाता है। कॉलिमेटर के थ्रू ये लेड
ब्रेक्स हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, लेड ब्रेक्स, ठीक है। और पॉलीमेट होने के बाद जो अल्फा पार्टिकल्स पॉलीमीटर से निकलते हैं, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, and then the beam of alpha particles strike the thin cold foil, and after striking this thin cold foil the alpha particles scatter in all the directions, ठीक है। and where the alpha particles are striking, they will strike on this the rotatable detector, ठीक है, which consists of zinc sulfide screen and a microscope. The zinc sulfide coating is done because zinc sulfide is a scintillating compound, and zinc sulfide screen has a special quality that when the charged particle strike it, then a spark is produced which lasts for some time, and then the spark is observed through microscope. ये सारी चीजें आप इसे ड्रॉ कर लो। मैं इसका 3D फिगर भी आपको बना के दिखाता हूँ। चलो पहले इसे ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसे रब करके बना के दिखाता हूँ। ये लिखवाने की जरूरत है क्या इसके बारे में? आए ना, लिखवाना है इसके बारे में, आप कर लोगे? And I would strongly recommend कि अपनी एक अलग कॉपी बनाओ फिजिक्स की, because the notes that I'm providing are more than sufficient. अगर एग्जाम में इतना भी पढ़ के चले जाओगे, then अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। दिवाली के बाद आई चेक, ठीक है, उसमें जितना भी मैंने पढ़ाया है नोट्स भी होने चाहिए, प्लस एनसीईआरटी के जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं वो भी होने चाहिए। 19 तो है, सारी क्या होता है? अच्छा, आप लोगों के पास सैंपल पेपर की कोई बुक है? सो एक परचेस कर सकते हो ना ये फाइल से, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रीवियस ईयर्स की परचेस, सैंपल पेपर नहीं परचेस करनी, प्रीवियस ईयर्स की परचेस करनी है, ठीक है, और वो भी जिसमें चैप्टर वाइज हो, ताकि आप जो भी चैप्टर कवर करते जाओ उसके सारे क्वेश्चंस उस हिसाब से देखते जाओ। आई टेल द नेम, ठीक है, अगर आप अपने पसंद के खरीदना चाहते हो तो वो खरीद सकते हो, अदरवाइज जो मैं रिकमेंड करूंगा वो खरीद लूंगा, क्योंकि हम मतलब चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में, और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और सैंपल पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो आपको दो बुक्स अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर लिया तो रब कर दूं? देखो देखो, अगर मैं इसका 3D फिगर बनाऊं ना तो ये इस तरीके से बनता है। समझ आ रहा है कुछ? देखो ये हमारी रोटेटेबल स्क्रीन हो गई, ठीक है,
और इसके बीच में इसके सेंटर पे यहाँ पे थिन गोल्ड फॉइल है, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद ऐसे स्कैटर होता है। समझ आया? तो ये 3D में हो गया थोड़ा सा, आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ इट, ठीक है। ये हमारी थिन गोल्ड फॉइल है, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं, ये रोटेटेबल डिटेक्टर है, और यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हो गई। यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, जिसे हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि इस अल्फा पार्टिकल ने किस एंगल पे स्ट्राइक किया। और जो एंगल मेजर किया जा रहा है वो इसके सेंटर से एक लाइन जा रही है, तो जैसे ये है, तो इस लाइन से मेरे को किया जा रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत देख लो उसके बारे में। A radioactive source of alpha particles, point number 1 है, ठीक है। A radioactive source of alpha particles, a radioactive source of alpha particles is enclosed in a thick lead block, is enclosed in a thick lead block provided with a narrow opening, provided with a narrow opening, full stop. Point number 2, the alpha particles from this source, the alpha particles from this source, the alpha particles from this source are collimated, bracket में लिखना, make particles accurately parallel, make particles accurately parallel. The alpha particles from this source are collimated, और फिर ब्रैकेट में make particles accurately parallel, ब्रैकेट बंद हो गया, into a narrow beam through a narrow slit, into a narrow beam through a narrow slit, into a narrow beam through a narrow slit, full stop. Point number 3, the beam is then allowed to fall on a thin gold foil. The beam is then allowed to fall on a thin gold foil. The beam is then allowed to fall on a thin gold foil. Full stop. Next point. After hitting the foil, the alpha particles scatter in different directions. After hitting the foil, the alpha particles scatter in different directions. Scatter in different directions. After hitting the foil, the alpha particles scatter in different directions. Next point. The alpha particles scattered in different directions. The alpha particles scattered in different directions. The alpha particles scattered in different directions are observed with the help of a rotatable detector, with the help of a rotatable detector, which consists of a zinc sulfide screen, which consists of a zinc sulfide screen and a microscope, which consists of a zinc sulfide screen and a microscope. अच्छा, इसमें अब इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ बना के लिखना, ठीक है, इसी पॉइंट के अंदर द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स could be studied, the scattering of alpha particles could be studied by the brief flashes on the screen, could be studied by the brief flashes on the screen. Full stop.
the spot is viewed through the microscope. The spot is viewed through the microscope. The spot is viewed through the microscope. Full stop. In this way, the number of alpha particles, in this way, the number of alpha particles, in this way, the number of alpha particles scattered at different angles, in this way, the number of alpha particles scattered at different angles are counted. दिवाली के बाद आप लोगों के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो गए, ठीक है? different particles. The number of alpha particles scattered at different angles are counted. Scattered at different angles are counted. हो गया? Next point लिखो एक और. सर एवरग्रीन नहीं है, एवरग्रीन मैं नाम बता दूंगा WhatsApp पे, ठीक है? फिर एक बार मैं देख इस वाले सर पे ही कह रहे थे ना. अच्छा भाई वो मेरे थे. मैं एक बार देख लूँ कौन सी अच्छी है, फिर एक बार मैं बता दूंगा, ठीक है? और बाकी अगर आपको कोई अच्छी लग रही है अपने हिसाब से तो आप ले सकते हो. Next point, the whole apparatus is enclosed in an evacuated chamber. इस पूरे सेटअप को मतलब वैक्यूम चैम्बर के अंदर एनक्लोज कर दिया जाता है टू अवॉइड द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? ताकि अल्फा पार्टिकल्स एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से स्कैटर ना हो. So the whole apparatus is enclosed in an evacuated chamber. To avoid scattering of alpha particles. To avoid scattering of alpha particles by air molecules. To avoid scattering of alpha particles by air molecules. To avoid scattering of alpha particles by air molecules. ठीक हो गया? ये आपका एक्सपेरिमेंट था पूरा, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में बोलता है कि ड्राइगर एंड मार्शल एक्सपेरिमेंट, तो कंफ्यूज मत होना, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, ठीक है? क्योंकि बाद में इन लोगों ने रिपीट करा है तो इनके नाम से जाना है, क्योंकि सीबीएसई के क्वेश्चंस में ये वाला नाम ही यूज होगा, ड्राइगर एंड मार्शल. अब ऑब्जर्वेशंस क्या आते हैं इस एक्सपेरिमेंट की, वो लिखो. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है? Point number 1 लिखो. Most of the alpha particles ब्रैकेट में लिखना about 99.86%, about 99.86% pass straight through the gold foil. मतलब 99.86% alpha particles ऐसे हैं जो कि मतलब विदाउट एनी डिफ्लेक्शन स्ट्रेट पास हो जाते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से इस पॉइंट से ये कंक्लूड किया गया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. इससे ये कंक्लूजन निकाला गया इस पॉइंट से, ठीक है? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा, मोस्ट ऑफ द alpha particles about 99.86% pass straight through the gold foil, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, a few alpha particles about 0.14% deviate through small angles. यानी कि 1 डिग्री से कम या थोड़ा ज्यादा है, अराउंड 1 डिग्री के आसपास जो थे, मतलब बहुत 0.14% है, कुछ भी नहीं है, 0 मतलब 99.86% जब पास हो गए, 100 भी अगर करे होंगे, करे तो लाखों हैं, ठीक है? अगर हम एवरेज माने कि 100 करें तो 99.86% अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेटली पास हो जाते हैं, ठीक है? एंड 0.14% अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं कि जो हल्का सा डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं अराउंड 1 डिग्री और सो. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है तो इसका मतलब यहां एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है. लेट मी एक्सप्लेन. सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ऑल्दो अभी तक पता नहीं है, अभी तो मतलब क्योंकि मॉडल दिया नहीं गया है एटम तक, तो ऑब्जर्वेशन
उसके अराउंड ये एटम, कि ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये क्यों दिखे, उनका रीजन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सपोज जो अल्फा पार्टिकल्स, अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सो जो अल्फा पार्टिकल्स बहुत दूर से पास हो रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस से काफी डिस्टेंस पे हैं, तो वो तो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन पास हो जाते हैं, ठीक है, और जो अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा और पास आते हैं वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, और जो इसके पास अल्फा पार्टिकल्स आते हैं वो 90 डिग्री या मोर का उन्हें डिफ्लेक्शन सफर करना पड़ता है इस तरीके से, और जो न्यूक्लियस के सामने से बिल्कुल अल्फा पार्टिकल्स आते हैं वो यहां तक पहुंचते हैं न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर, और यहां पर उनकी स्पीड 0 हो जाती है और फिर वो रिबाउंड कर जाते हैं, ठीक है, और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एनीवन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी हम पढ़ेंगे, लाइक ये तो मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया है जस्ट, कि जो 99.86% अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट पास हो जा रहे हैं बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ये रीजन है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 0.14% डेविएट थ्रू स्मॉल एंगल्स, तो बिकॉज़ जो अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा नजदीक आ जाते हैं न्यूक्लियस के, उन पे थोड़ा सा कोलम्बियन रिपल्शन लगता है, ठीक है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, +2 की कल की बात हुई थी हमारी इस बारे में, +2, और यहाँ पे न्यूक्लियस पे Ze पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे उन्हें रिपल्शन फेस करना पड़ता है और उसकी वजह से ये कुछ डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब जो जितना दूर है उतना कम उस पर रिपल्शन फोर्स करता है और जो जितना पास जा रहा है उस पर उतना ही ज्यादा रिपल्शन फोर्स करता है। सबसे ज्यादा रिपल्शन इसे इस वाले पार्टिकल को फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ये हेड ऑन कोलिजन करने जा रहा है न्यूक्लियस से, तो यहाँ पे इस पे फोर्स लगता है पीछे की तरफ, रिपल्सिव फोर्स लगता है और एज अ रिजल्ट उसकी कुछ वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाती है न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर, एंड फिर वो दोबारा रिबाउंड कर जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, a very few alpha particles about 1 in 8,000 get deflected through 90 degree or more, यानी कि 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल है वो 90 डिग्री या उससे ज्यादा का डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, a very few alpha particles about 1 in 20,000 get rebounded from the gold foil, suffering a deflection of nearly 180 degree, ये 180 डिग्री पे रिबाउंड हो गया। सो 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो 90 डिग्री या उससे ज्यादा का डिफ्लेक्शन शो करता है, एंड 20000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो कि रिबाउंड हो जाता है। इसका इन दोनों पॉइंट से ये कंक्लूजन, अब हमें सेकंड पॉइंट से तो ये कंक्लूजन मिला क्योंकि डेविएशन डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, तो क्या हो रहा है कि एटम में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री या उससे ज्यादा रिबाउंड हो रहा है एंड 20000 में से एक अल्फा पार्टिकल रिबाउंड कर जाता है, तो इसका मतलब जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये एक बहुत ही ज्यादा स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल का आना और कंप्लीटली यहां से रिबाउंड करना ये कोई मतलब आसान बात नहीं थी अगर फूड के लिए भी समझना। तो यहाँ पे यानी कि कोई सेंटर में ऐसी कुछ वॉल्यूम है जहां पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम इज आल्सो कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड दिस स्मॉल वॉल्यूम। तो जो मास होता है वो ज्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से ही होता है, सो दैट इज द रीजन। अब कंक्लूजन सीखो। First conclusion, as most of the alpha particles pass straight through the foil, as most of the alpha particles
So most of the space within atoms must be empty, as most of the alpha particles pass straight through the foil. So most of the space within atoms must be empty. So most of the space within atoms must be empty. Second, a few alpha particles deviate through small angles. A few alpha particles deviate through small angles. So there must be some positive charge in the atom. So there must be some positive charge in the atom. ठीक है? Third point, to explain large scale scattering of alpha particles, to explain large scale scattering of alpha particles, to explain large scale scattering of alpha particles, Rutherford suggested that all the positive charge, Rutherford suggested that all the positive charge and almost नहीं देखो that all the positive charge and the mass of the atom, that all the positive charge and the mass of the atom is concentrated in a very small region, in a very small region called the nucleus of the atom. मतलब जो ये वाला पॉइंट है कि जो हेड ऑन कोलिजन करने के लिए अल्फा पार्टिकल जा रहा है और ऐसे रिबाउंड हो जाता है, इसके लिए मतलब रदरफोर्ड ने अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए एक कोटेशन भी दिया. मतलब उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल उनके लिए ऐसा था कि अगर उन्होंने 15 इंच की मिसाइल किसी पे छोड़ी हो, टिश्यू पेपर पे छोड़ी हो और वो टिश्यू पेपर से रिबाउंड करके वापस आ जाती है. एक स्टेटमेंट आपको ऐसा मिलता है. Called the nucleus of the atom. ठीक हो गया? Fourth point, fourth conclusion. The nucleus is surrounded by a cloud of electrons. The nucleus is surrounded by a cloud of electrons whose total negative charge is equal to the total positive charge on the nucleus. Whose total negative charge is equal to the total positive charge on the nucleus, so that the atom as a whole is electrically neutral. Is equal to the total positive charge on the nucleus, so that the atom as a whole is electrically neutral. So that the atom as a whole is electrically neutral. ठीक हो गया? तो ये कंक्लूजन्स ड्रॉ हुए बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस दैट वी जस्ट डिस्कस्ड. अब देखो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. अब इन सारे कंक्लूजन्स के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया जो कि हम लिखने जा रहे हैं. ठीक है? तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम लिख रहे हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, an atom consists of a small and massive central core. An atom consists of a small and massive central core in which the entire positive charge and almost the whole mass of the atom are concentrated. देखिए full stop. This core is called the nucleus. An atom consists of a small and massive central core in which the entire positive charge and almost the whole mass of the atom are concentrated. Full stop. This core is called the nucleus. ठीक हो गया? मतलब ये पहला मॉडल ऑफ एटम था जिसमें न्यूक्लियस की बात हुई थी, इसलिए इसे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है. इससे पहले किसी ने न्यूक्लियस की बात नहीं की थी.
तो यहाँ पे जब ये हेड ऑन कोलिजन वाली स्टेट इन्होंने देखी एंड देखा कि अल्फा पार्टिकल बिल्कुल रिबाउंड कर जाता है, तो इन्होंने कंक्लूड करा यहाँ से कि मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और सारा का सारा जो मास है एटम का ज्यादातर वो एक स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए एंड जिसको फिर उन्होंने न्यूक्लियस कहा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, the size of the nucleus is very small, the size of the nucleus is very small, ब्रैकेट में लिखना ऐसे करके approximately 10 to the power minus 15 मीटर। इसको क्या बोलते हैं 10 to the power minus 15 मीटर को 1 फर्मी, पता? तो इसे हम 1 फर्मी बोलते हैं। लिखो the size of the nucleus और ब्रैकेट में approximately 10 to the power minus 15 मीटर या 1 फर्मी is very small as compared to the size of the atom, is compared to the size of the atom, approximately size of the atom is 10 to the power minus 10 मीटर। ये रेडियस की बात हो रही है, ठीक है। The size of the nucleus approximately 10 to the power minus 15 meter is very small as compared to the size of the atom which is 10 to the power minus 10 meter। तो कितने टाइम्स बड़ा हो गया एटम न्यूक्लियस से? 1 lakh टाइम्स। मतलब इट्स लाइक कि बास्केटबॉल ग्राउंड है पूरा और उसके बीच में एक फुटबॉल रखी हुई है, न्यूक्लियस इतना छोटा है। ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हो इस चीज से। थर्ड पॉइंट, the nucleus is surrounded by a suitable number of electrons, the nucleus is surrounded by a suitable number of electrons so that their total negative charge, जल्दी लिख के कंप्लीट कर लेते हैं इस बार एक पॉइंट और बस, so that their total negative charge is equal to the total positive charge on the nucleus, is equal to the total positive charge on the nucleus and the atom as a whole is electrically neutral, and the atom as a whole is electrically neutral। हो गया फोर्थ पॉइंट, हो गया ना सबका कंप्लीट। फोर्थ पॉइंट, the electrons revolve around the nucleus, the electrons revolve around the nucleus in various orbits, the electrons revolve around the nucleus in various orbits just as planets revolve around the sun, just as planets revolve around the sun, full stop। The centripetal force required for their revolution, the centripetal force required for their revolution is provided by the electrostatic attraction, is provided by the electrostatic attraction between the electrons and the nucleus। The electrons revolve around the sun in various orbits just as planets revolve around the sun, full stop। The centripetal force required for their revolution is provided by the electrostatic attraction, is provided by the electrostatic attraction between the electrons and the nucleus। Done? ये मॉडल ऑफ एटम कंप्लीट हो गया। कल हम लिमिटेशन डिस्कस करेंगे एंड दो कॉन्सेप्ट और बचेंगे इसी में, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर।